A very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are fine and everybody is fine at home, children. Children, the next revision test is coming of the chapter psychological disorder. So the topic which I'm going to discuss with you is related to that only. Here I am showing you one of the PPT and I hope this PPT will make you help and this PPT will help you a lot in order to understand this particular disorder in a proper manner. So I'm going to discuss with you and explain you about the depression. The depression is one of the mood disorder and it is also known as major depressive disorder. हम इसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं. Here are some of the lines which are indicated to you all, and you can see what it is written over here. I can't eat anything. My stomach is empty and I am hungry, but I lose my appetite and I don't find food appetizing all. Everything that I used to like eating, I can't eat anymore. I keep losing weight. So whatever the pictures which you will see over here, it is all related to the depression, and it gives you an idea about a depression. It gives you an idea as well as the symptoms about the depression. So what happened in the depression, the appetite get lost, or usually the person जो होते हैं, they doesn't feel very good, they doesn't want to eat anything, they start losing their weight due to the depression. So it is one of the symptoms. The next is, I have difficulty sleeping every night. I close my eyes to try to get some rest, but all I can think about are my concerns and it does not let me sleep. So basically, what are the problems which the person facing during depression is eating problem, eating disorder, as well as the sleeping problem. I feel worthless. I feel like no one loves or cares for me, and it makes no difference whether I am living in this world or not. After all, I am just a being on earth. Some kind of irrational thinking, and the negative thinking come into the person's mind. The person feel that they are not worthless. They are worthless. The people do not like them. Like उनको ये सारी तरह की फीलिंग्स आती हैं. I feel hopeless. I don't think that I could feel any better anytime, and I feel trapped. I feel like I'm living in black hole, and there is no way out, and I don't think I can ever happiness again. होपलेस हो जाते हैं. ये सारे सिम्टम्स हैं बच्चों. ठीक है, ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे जानने में व्हाट इज डिप्रेशन. तो डिप्रेशन में ये सारी चीजें होती हैं. ईटिंग प्रॉब्लम हो रही है, स्लीपिंग प्रॉब्लम होती है, सिम्टम्स दिखते हैं, फीलिंग ऑफ बर्थलेसनेस होता है, होपलेस फीलिंग्स होती हैं. The more lonely and depressed I feel, I should go out and have some fun, but I don't want to leave the house or go out with friends. I feel like I have no energy or urge to do so. एनर्जी भी नहीं लगता उनको और इच्छा भी नहीं होती. दे हैव डोंट अर्ज. लोनली फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं. I don't find anything interesting anymore. Hobbies and things that I enjoyed doing once do not interest me anymore. It's strange because I used love doing certain things, but now nothing catches my attention. So कोई चीज में मन नहीं लगता है, कोई भी चीज इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, सभी चीजें बोरिंग लगती हैं. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं पर्सन. I can't concentrate in anything I do. I try to focus in school to listen and learn, but nothing gets into my head and I tend to zone out and my mind goes blank.
The pictures which I'm showing to you, it also somewhere depict you about the depression, and you get an idea what depression looks like. Next, I think about committing suicide sometimes. Should I overdose on pills or should I use a weapon? Suicidal thoughts cross my minds often, and I feel that it wouldn't be a big deal even if I was gone. See, so many things came. वर्कलेसनेस की फीलिंग आ रही है, सुसाइड की फीलिंग्स आती है डिप्रेशन में, किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं होता है, कोई भी चीज इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, लोनली और डिप्रेस्ड रहना, डिप्रेस फीलिंग आती है, अकेले रहना चाहते हैं, आउट नहीं करना चाहते हैं. सो व्हाट इज इट? ये सारी चीजें हैं क्या? ये प्रॉब्लम क्या है? So depression is categorized as a mood disorder. A mood disorder is defined as a psychological disorder characterized by emotional extreme. मूड डिसऑर्डर क्या होता है? एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, और ये एक डिप्रेशन जो है एक तरह का मूड डिसऑर्डर है. इट कॉजेज अ परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस, कंटिन्यूअस सैड रहते हैं. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर इन द यूएस and arising in India also. These are some of the symptoms which I can say that if you are seeing this video, so you can take a screenshot, and it will be very helpful for you in writing the notes in your examination. These points will help you a lot. What are the symptoms of depression? Feelings of sadness, tearfulness, emptiness or hopelessness. सैडनेस की फीलिंग होती है, टीयरफुलनेस होता है, हर समय लगता है कि जैसे रोते रहें, एम्प्टीनेस खालीपन लगता है, होपलेसनेस होते हैं, एंग्री आउटबर्स्ट बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है. ठीक है, ये सारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं. लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, इंटरेस्ट नहीं होता किसी भी काम में, कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, प्लेजरफुल नहीं लगती है. स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, अनएबल टू स्लीप प्रॉपरली. टायर्डनेस और लैक ऑफ एनर्जी, टायर्डनेस यानी थकान होती है, लैक ऑफ एनर्जी लगती है. ठीक है, ये सारी चीजें हैं. चेंजेस इन एपेटाइट, एपेटाइट में चेंज होता है, लाइक वही अभी मैंने आपको एक आइकन दिखाया, तो ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग प्रॉब्लम, एंजाइटी हो रही है, एजिटेशन हो रहा है, रेस्टलेसनेस होती है. एंजाइटी, एजिटेशन मीन्स अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन. ठीक है, कंफ्यूज रहते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, अनएबल टू टेक द डिसीजन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग थिंग. रेस्टलेसनेस होती है, घबराहट होती है. स्लो थिंकिंग, स्पीकिंग और बॉडी मूवमेंट, हर एक चीज स्लो होने लगती है. आपने डिप्रेशन के पेशेंट्स को भी आई थिंक कभी कभी देखा होगा, यू हैव ऑब्जर्व. तो उनकी थिंकिंग जो होती है, देयर थिंकिंग वाज स्लो, दे स्पीक वेरी स्लोली, बॉडी मूवमेंट्स आल्सो वेरी स्लो, धीमे धीमे चलेंगे. फीलिंग ऑफ बर्थलेसनेस और गिल्ट, ट्रबल थिंकिंग, frequent or recurrent thoughts of death, unexplained physical problem. So these are some of the symptoms which are taking place in the depression. फीलिंग्स, अगर हम फीलिंग्स की बात करें तो many people feel as though they are trapped in their own mind. जिनको भी डिप्रेशन होता है उनको ये लगता है कि वो अपने ही माइंड में ट्रैप्ड हो रहे हैं. आप देख सकते हैं, ये पिक्चर बहुत अच्छे से दिखा रहा है, मॉन्स्टर्स डोंट स्लीप अंडर योर रेड. मतलब इस तरीके की अजीब से चीजें उनके साथ होती हैं. होपलेसनेस, दे आर वेरी मच होपलेस. वो जो पर्सन जिनको डिप्रेशन होता है, द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम द मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, दे हैव द फीलिंग ऑफ होपलेसनेस. होपलेसनेस मीन्स किसी चीज की उनको उम्मीद नहीं रहती है कि एनीथिंग विल बी डोन टू बी राइट. तो एवरी डे आई फील लाइक आई एम होम सिक फॉर अ प्लेस दैट डज नॉट एग्जिस्ट. आप देख सकते हैं ये फ्रेज इस गर्ल ने लिखा हुआ है.
इसको हमेशा लगता है कि इसको कोई बीमारी है और ये कभी ठीक नहीं हो सकती. तो many people feel hopeless when they are depressed. They find it hard to think logically about the future. They often lack motivation. They feel alone in the world. Sadness. People with depression can feel sad for no known reason. जो people जिनको depression होता है वो sad feel करते हैं और कोई reason नहीं होता उनके sad feel होने का. They might find themselves crying and not know why. Unnecessarily रोना start कर देते हैं. Anxiety often intertwined with depression but not always. So loss of interest is also in the major depressive disorder. Many people have trouble with daily activities. Things that used to be enjoyable are now pleasureless. जिन चीजों में enjoy करना भी चाहिए तो उसमें भी enjoy नहीं करते हैं. Daily activities में भी problem होती है. Things like school and work no longer are interesting. Some people had trouble thinking straight and concentrating. फिजिकल एग्जॉशन भी होता है. Cramps and pains may be felt. Headaches are common. Physical exhaustion can sometimes be worse than the mental exhaustion. It can feel like trying to breathe with a weight on our chest. बहुत मतलब chest बहुत heavy लगता है, heavy feel होता है. The person who is suffering from the major depressive disorder. A lot of people feel like they are watching the world spin from behind a glass wall. You can see that उनको लगता है कि कोई glass wall से पीछे से वो दुनिया को देख रहा है. Separation उनको लगता है ना कि उनको सब कुछ separate कर दिया है. Other people say that they feel like they are ghosts watching normal people walk around and living normal life. Others say it is like a dark hole that surrounds your entire life. So you can see separation, physical exhaustion, loss of interest, sadness, hopelessness, feelings क्या हो रही हैं, symptoms. तो हमने हर एक symptoms को भी थोड़ा सा डिटेल में we have discussed it about. Internal struggle. आप देख सकते हैं I have placed some of the pics also. So here is a person who is feeling that I am alone in the world. So depression can be said to be like a heartbreak. Many people say they feel numb. Others say that it's like the Death Eaters of Harry Potter and have sucked all the happiness out of you. Some people lose themselves in the struggle of it. तो इंटरनल स्ट्रगल में होते हैं, उनकी लड़ाई दूसरों से नहीं होती, खुद से ही होती है. सेल्फ स्ट्रगलिंग भी करते हैं. टाइप्स ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशन के भी कुछ टाइप्स हैं विच यू शुड नो. These are some of the types of depression: major depressive disorder, catatonic depression, seasonal affective, dysthymic, and bipolar. So these are some of the types of depression. जिनमें से आपको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और बाइपोलर डिप्रेशन को डिटेल में पढ़ना है. अदर्स को इतना डिटेल्स में आपको नहीं पढ़ना है. मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर ऑकर होता है व्हेन सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन लास्ट 2 वीक्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज लास्ट 2 वीक्स. मतलब 2 हफ्ते तक अदर पर्सन को डिप्रेशन हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि उसमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के सिम्टम हैं और वो डिप्रेशन किसी ड्रग से या मेडिकल कंडीशन से नहीं है. डिस्थमिक में क्या होता है, 2 साल तक डिप्रेस्ड मूड रहता है. एटलीस्ट 2 years ऑफ डिप्रेस्ड मूड फॉर मोर देन नॉट accompanied बाय एडिशनल सिम्टम that do not reach criteria for major depressive disorder. 2 years तक रहता है अगर डिप्रेशन डिप्रेस्ड मूड, तो हम उसे डिस्थमिक डिसऑर्डर कह सकते हैं. बाइपोलर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इसमें मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड साइक्लिक पैटर्न में आते हैं. यानी मैनिक आया फिर डिप्रेशन आया, देन मैनिक आया डिप्रेशन, साइकिल चलता रहता है. और कभी कभी मे हैव ओनली मैनिक एपिसोड. कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ मैनिक ही एपिसोड्स रहते हैं या डिप्रेसिव ही एपिसोड्स रहते हैं.
तो इसे कहते हैं बाइपोलर। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या हो रहा है कि रिपीटेटिव डिप्रेसिव एपिसोड एट द सेम टाइम ऑफ ईयर, सीजनल है ये, तो यानी पर्टिकुलरली साल के किसी किसी एक मंथ में ये ऐसा हो रहा है, या उस साल ऐसा हो रहा है, टाइम ऑफ द ईयर सीजनल है। रिपीटेटिव डिप्रेसिव एपिसोड एट द सेम टाइम ऑफ ईयर। सिम्टम्स इसमें क्या हो रहे हैं, हाइपरसोमनिया हो रहा है, इंक्रीज एपेटाइट हो रहा है, इंक्रीज क्रेविंग फॉर कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ऑनसेट इसका यूजली विंटर में देखा गया, विंटर में होता है, रिकवरी स्प्रिंग और समर तक हो जाती है। कॉज माइट बी शॉर्टनिंग इन द डे लाइट, ट्रीटमेंट एक्सपोजर टू ब्राइट आर्टिफिशियल लाइट ड्यूरिंग आवर्स ऑफ डार्कनेस। ये आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना। आते हैं कॉजेस पढ़ते हैं। हमने ये जाना कि व्हाट इज डिप्रेशन, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिप्रेशन, क्यों होता है। Here is a CT scan of the mind of the two people, the person who is depressed and one is the person who is not depressed. So you can see the difference. Okay, जो डिप्रेस्ड है उसका माइंड का जो सिटी स्कैन है वो कैसा है, और नॉन डिप्रेस्ड आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से फिल है, बट इसमें देख सकते हैं ये फिल नहीं है, थोड़े थोड़े जगह, तो प्रॉब्लम तो है ऑब्वियसली। एंड इट इज ऑल्सो कॉन्स्ट्रैक्टिंग, आप देख सकते हो ये उतना कॉन्स्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, पर ये कॉन्स्ट्रिक्ट भी हो रहा है। कॉजेज के अगर की हम लोग बात करें तो सबसे पहला आता है बायोलॉजिकल डिफरेंस। देयर कैन बी अ फिजिकल प्रॉब्लम इन द ब्रेन ऑफ डिप्रेस्ड पीपल। जिनको डिप्रेशन होता है तो उनके में कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। देयर कैन बी फिजिकल प्रॉब्लम इन द ब्रेन ऑफ डिप्रेस्ड पीपल। Second, brain chemistry. There may be an imbalance of the amount of neurotransmitter exposure. न्यूरोट्रांसमीटर के भी इम्बैलेंस से डिप्रेशन हो सकता है। फिजिकल प्रॉब्लम है कोई ब्रेन में तो भी वो भी एक कारण हो सकता है डिप्रेशन के लिए। देन हॉर्मोन्स, केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन। इनहेरिटेड ट्रेट, डिप्रेशन कैन भी जेनेटिक, जेनेटिक भी हो सकता है डिप्रेशन, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर की हम लोग बात करें कि क्या डिप्रेशन इनहेरिट होता है, तो मेजर डिप्रेशन कैन ऑकर जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन सम फैमिली, but it can also occur in people who have no family history of depression. So major depression can occur generation after generation in some families, but it can also occur in people who have no family history of depression. Whether inherited or not, major depressive disorder is often associated with changes in brain structure or brain function. Basically बच्चों, डिप्रेशन इनहेरिट है कि नहीं ये क्वेश्चन तो पूछा गया है, तो ये देखा गया कि डिप्रेशन जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन फैमिलीज में होते हैं, बट ये अगर उनको भी हो जाते हैं जिनका कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है डिप्रेशन का, उनको भी डिप्रेशन होता है। और वेदर इट इज इनहेरिटेड और नॉट, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज ऑफन एसोसिएटेड विद चेंजेस इन ब्रेन स्ट्रक्चर और ब्रेन फंक्शन, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग, अगर ब्रेन के फंक्शन में या ब्रेन के स्ट्रक्चर में कोई चेंज होता है तो उसकी वजह से भी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि इनहेरिटिव हो। So we came to the conclusion that depression can be a genetic factor or it cannot be a genetic factor. Okay, जरूरी नहीं है कि ये ट्रांसफर ही हो फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, तो वी आर चिल्ड्रन स्टडिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ डिप्रेशन। द फर्स्ट वन इज द जेनेटिक and the another one is the psychological factor. People who are pessimist, who have low self-esteem, and who are readily overwhelmed by stress are more prone to depression.
जो पेसिमिस्ट होते हैं, हर एक चीज को नेगेटिवली लेते हैं, जिनकी सेल्फ स्टीम लो होती है, वो बहुत जल्दी ही उनको डिप्रेशन होता है. Whether this represent a psychological predisposition or an early form of the illness is not clear. So I hope the causes are very much clear to you all. The biological factor and the psychological factor. Now, कुछ फिजिकल फैक्टर भी देखे गए हैं डिप्रेशन के लिए, जैसे कि मेडिकल इलनेस भी हो सकता है, लाइक स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कैंसर कैन रिजल्ट इन डिप्रेसिव एपिसोड इन सम पीपल. तो चिल्ड्रन, देयर कैन बी सो मेनी कॉजेज फॉर द डिप्रेशन. बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं डिप्रेशन के लिए. बायोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजिकल फैक्टर भी हो सकता है. देन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं डिप्रेशन के लिए, जैसे सीरियस लॉस हुआ आपका लाइफ में, डिफिकल्ट रिलेशनशिप है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या एनी स्ट्रेसफुल चेंज इन द पैटर्न कैन ट्रिगर अ डिप्रेसिव एपिसोड. So you can see, children, there are so many factors which are responsible for the depression. Biological factor, psychological factor, physical factor and environmental factor. यानी कह सकते हैं कि डिप्रेशन इनहेरिटेड भी हो सकता है, ये ट्रांसफर हो सकता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. कुछ फिजिकल फैक्टर हो सकते हैं, इलनेस भी किसी तरह का है तो वो भी रीजन बन सकता है डिप्रेशन के लिए. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी कुछ हो सकते हैं जो कि डिप्रेशन का रीजन बन सकते हैं. सिमिलरली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी है जो कि रीजन बन सकता है, जैसे कि कोई लॉस है या डिफिकल्ट रिलेशनशिप है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं. तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिनसे कि डिप्रेशन हो सकता है. Here I am going to discuss with you the risk factor. क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी को जानने के लिए. जैसे कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स भी होते हैं ऐसे कि जो वे आर वेरी प्रोन टू डिप्रेशन. ट्रॉमेटिक या स्ट्रेसफुल इवेंट्स हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा, ब्लड रिलेटिव विद द हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन, भाई हो सकता है जेनेटिक भी हो सकते हैं, बीइंग लेस्बियन, गे एंड बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर इन एन अनसपोर्टिव सिचुएशन, हिस्ट्री ऑफ अदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, abuse of alcohol or illegal drugs, serious or chronic illness, certain medications. So ये सारे कुछ रीजन हो सकते हैं डिप्रेशन के लिए. Suicide is a very common thing which is related to the depression, and it is a topic which is discussed in your NCERT also. So what are the risk factor for the suicide? Nations, male, advanced age, single or living alone. नेशंस, जैसे अमेरिका में ज्यादा केसेस देखने को मिले हैं सुसाइड के. मेल पर्सन्स आर मोर प्रोन टू द सुसाइड, ये देखा गया है, क्योंकि मेल पर्सन्स डजंट रिवील देयर इमोशंस. फीमेल्स अपने इमोशंस रिवील कर देती हैं, मेल्स के इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं होते, तो उनको डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. एडवांस एज के साथ भी डिप्रेशन होता है एज द पर्सन ग्रो. सिंगल या अकेले आप रह रहे हैं तो भी प्रॉब्लम होती है. प्रायर सुसाइड अटेम्प्ट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर ऑफ सुसाइड. जैसे कि किसी ने पहले कोई सुसाइड एक बार अटेम्प्ट किया तो हो सकता है कि फिर उसके पास सेकंड थॉट भी उसके माइंड में आए. फैमिली हिस्ट्री अगर है सुसाइड की तो भी एक रिस्क फैक्टर है. फैमिली हिस्ट्री है सब्सटेंस अब्यूज की, मेडिकल इलनेस है, साइकोसिस है, होपलेसनेस है, तो ये सब कुछ रिस्क फैक्टर हैं सुसाइड के. ट्रीटमेंट्स क्या हो सकते हैं? व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट फॉर द डिप्रेशन? सो हमने ये जाना है व्हाट इज डिप्रेशन, व्हाट आर द सिम्टम्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिप्रेशन, what are the types of depression, and now how the depression can be treated. So basically if we talk about the depression के लिए सबसे best therapy की अगर बात करें तो CBT is very famous. Here it is given that taught to a psychologist about psychological counseling. So one is the psychotherapy is the treatment,
And second is the talk to a psychiatrist about getting prescribed an antidepressant. You can see some medications was medicines pick was given here. तो साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं फॉर द थेरेपी और साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं फॉर द मेडिसिन. मैंने थेरेपी में यही बताया था कि सीबीटी इज वेरी यूजफुल. तो सीबीटी के बारे में थोड़ा सा इसमें जानेंगे कि सीबीटी क्या करता है. ये आइडेंटिफाई करता है ऑटोमेटिक मैल एडेप्टिव थॉट्स को और डिस्टॉर्टेड बिलीफ को. जो बिलीफ एकदम डिस्टॉर्टेड हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करता है और जो कि डिप्रेसिव मूड को लीड आउट कर रहे हैं. Learn strategy to modify this belief and practice adaptive thinking pattern. सबसे पहले बेसिकली कहने का मतलब है आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को, फिर लर्निंग करना, फिर यूज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू रिइंफोर्स पॉजिटिव कोपिंग बिहेवियर. 8 to 12 सेशंस, 8 से 12 सेशंस होते हैं सीबीटी के. आप देख सकते हैं पिक्चर में कि कैसे वो उसके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहा है. इसके अलावा इंटरपर्सनल थेरेपी इज ऑल्सो फाउंड टू बी वेरी यूजफुल. इंटरपर्सनल थेरेपी भी आप दे सकते हो, ठीक है. ये भी बहुत इफेक्टिव होता है. इसमें सिग्निफिकेंट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं जिससे कि डिप्रेशन हो रहा है. 1 और 2 इश्यूज को देखते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. इसका सेशन 12 to 16 सेशंस होते हैं. ECT is also one of the therapy, electroconvulsing therapy, electric shock जिसे कहते हैं. तो depression with suicidal ideation, depression with psychotic symptom, resistant depression, not responding to various drug, इन सारे cases जब होते हैं तो इन तरह के cases में हम लोग ECT देते हैं. जैसे कि रेजिस्टेंट डिप्रेशन है या सुसाइडल आइडिएशन है या साइकोटिक सिम्टम है तो हम लोग ईसीटी पे आते हैं. अदरवाइज हम लोग ईसीटी पे नहीं आते हैं. फ्रीक्वेंसी इसका क्या होता है. फर्स्ट 3 ट्रीटमेंट ऑन अल्टरनेट डे देन ट्वाइस अ वीक. ठीक है, स्टार्टिंग के 3 ट्रीटमेंट तो अल्टरनेट डे पे देते हैं, फिर ट्वाइस अ वीक में 2 बार देते हैं. 6 to 12 डिपेंडिंग अपॉन रिस्पॉन्स. कुछ थेरेपी के अलावा कुछ चीजों को हमें ध्यान देना पड़ता है, जैसे हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो. हमें सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट होना चाहिए. रेगुलर एक्सरसाइज करिए, हाउसिंग एडिक्वेट हो, रेगुलर मील, हेल्दी रेगुलर मील, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, स्लीप हाइजीन, एंगेजिंग एंड एटलीस्ट 1 प्लेजरेबल. कोई एक अपनी इंटरेस्ट का काम जरूर करें, ये भी बोला जाता है उन्हें. सब्सटेंस का यूज ना करें और कीपिंग अ डेली मूड चार्ट. कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिप्रेस्ड पीपल आर मोर प्रोन टू कोल्ड देन नॉन डिप्रेस्ड पीपल. ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. वुमेन आर ट्वाइस इज लाइकली टू सफर फ्रॉम डिप्रेशन एज मैन. It is also wrong concept. These are some myth you can say regarding the depression which people are holding outside. Exposure to abuse and violence make people more vulnerable to depression. This is again wrong. There is a relationship between depression and physical health. ऐसा कुछ नहीं है. Many creative poets and writers have experienced depression. It is also not a proper fact. Even positive event can lead to depression. ऐसा भी नहीं है. So ये सारी चीजें हैं. Some case studies are also here which can be useful for you. You can take a screenshot of these case study and these case study which I had discussed here is about the depression only. So just say here you can see the 3 case study. One is Roshan and one is Prateek and one is Nancy. One of Nancy क्या है described herself as being tracked by her relationship. 25-year-old girl है ये. Her intake interview confirmed symptoms of major depressive disorder and recommended CBT. Prateek को भी depression के history था and sought treatment after his marriage ended. His depression was characterized being controlled by a pattern of interpersonal avoidance. So this is and Roshan, a 15-year-old adolescent. So these are some of the case study. So I just hope children you understand the topic very well about the depression
and this PPT will help you a lot in understanding it in a more detailed manner. So I just say thank you so much for carefully observing this video. And if you still have a doubt regarding this topic, depression, so you will ask me in the classroom. Thank you so much, children. Thank you once again.